Hello everyone, welcome to CommerceNet Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine and you are being regular with the studies. Today's video is all about the topic small scale industries, which are shortly referred to as the SSIs. In today's video, I'll be telling you about the meaning of the small scale industries, the objectives that is behind the setting up of the small scale industries. We'll be discussing about the advantages and disadvantages of the small scale industries. At the same time, I would be providing you a comparison between the old definition of the small scale industry as per the MSME definition as well as the new or updated definition of MSME sector concerning the small scale industries. So let's start with today's video and discuss what small scale industries are all about. But before starting, as you all know, a reminder for you all, don't forget to subscribe the channel if you haven't subscribed yet, and please do give it a like if you really like the video. That would prove for me to be a motivation. Let's start with the introduction of small scale industries. Essentially, the small scale industries are generally comprised of those industries which manufacture, produce and render services with the help of small machines and less manpower. All forms of manufacturing or services providing industries would be coming under small scale industries that are providing you any kind of facility or any kind of product with limited manpower and with limited resources. They are not using lot of technological equipments, lot of manpower. That manpower, the quantity of labor that they're using and the technology that they're using is quite confined to a certain limit or extent. If you talk about the examples, we can have the bakeries and all that are there near our house, or all you are having easy access to them. Whatever stationery products you have, then the water bottles, the plastic industry, talking about the plywood industry, all that would be coming under the purview of the small scale industries. The SSIs are the lifeline of the economy, especially in developing countries like India. Obviously, because we are very well aware that India is a labor intensive country, but at the same time, this problem that we have is of illiteracy. Not every personal or not every individual that is living in our country is educated in a very well manner, या ये कह सकते हैं कि सबके पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्किल या नॉलेज नहीं है. कुछ ऐसा सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास बेसिक एजुकेशन है, बट हाँ वो कुछ काम ऐसे हैं जो वो बहुत स्किलफुली कर सकते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ में क्या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा क्योंकि मेजॉरिटी सेक्शन हमारे पास इंडिया में इन्हीं लोगों का है जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास कोई स्किल्स हैं जिसके बेसिस पे वो आगे काम कर सकते हैं. तो क्योंकि मेजॉरिटी सेगमेंट ऑफ द कंट्री इसका है, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जहाँ ये लेबर्स एम्प्लॉय होते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो नंबर है वो एक्सपैंड होता है और ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. So I just hope you are clear about the introduction of the small scale industries. Proceeding further, we'll discuss about the objectives of SSI. First is to create more employment opportunities. ज़्यादा small scale industries setup हो रही है तो अब ज़्यादा labor forces में employ होगा, जिसकी वजह से majority of the employment opportunities will be created for the people living in the country. Second is to reduce regional imbalances. Whatever imbalances are arising out of the regional issues, that has to be minimized. To mobilize and ensure optimum utilization of resources. The SSIs are aiming towards utilizing the scarce resources in the best possible manner. It's a well-known fact that we are labor-intensive country, but we are quite short of capital at times. So this is what happens. This is what small-scale industries are aiming at, to provide employment opportunities to more and more people. The factor that which we are strong at, जो हमारा labor force है वो हमारी strength है, तो उसको best possible way में कैसे use करना, और साथ ही साथ जो हमारे scarce resources हैं उनके लिए हम best और optimum utilization कैसे guarantee कर सकते हैं. This is the work of the SSIs. नेक्स्ट इज इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाएगा. पहले वो अर्न नहीं करता था, वो अच्छा नहीं खाता था, वो अच्छा नहीं पहनता था, लेकिन अब वो अर्न कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाएगा. टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. जो भी लेबरर्स, जो भी वर्कफोर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये इंश्योर किया जाएगा कि उनको जो भी इनकम मिल रही है वो इक्विटेबल और जस्टिफाइबल हो, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट दे आर प्रोवाइडिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन.
Next is to attain self-reliance. When you are providing somebody with employment, you are making that person self-dependent और self-reliant. वो किसी और के ऊपर dependent नहीं है कि आप मुझे 100 रुपये दो, आप मुझे 500 रुपये दो तो मैं आज अपने घर का कुछ खर्चा चला सकूँ. जब आप खुद अर्न कर रहे हो तो आप self-dependent हो जाते हो अपने घर के खर्चों को मैनेज करने के लिए. And the last is to adapt latest technology aimed at producing better quality products at lower cost. तो जितना भी technological upliftment होता है, SSIs are aiming towards achieving those as well, so that the products can be manufactured in the best possible way and the services can be rendered efficiently. Talking about the advantages of the role of small scale industries, the first is employment generation, which we discussed right now. Mobilization of resources and entrepreneurial skills. Whatever resources are there in the economy, और जो भी entrepreneurial skills यानी कि जो भी हमारे मैनेजमेंट लेवल के जितने भी कह सकते हो जो कैटेगरी आती है, जो वर्कफोर्स आता है मैनेजमेंट लेवल का, जो कि प्रॉपर नॉलेज और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को, उस सबको यूज करना. Equitable distribution of income, we discussed right now. Regional dispersal of industries provides opportunities for development of technology. ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, ज़्यादा काम होना है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो इंडस्ट्रीज तक ज़रूर पहुँचेगी, तभी ये मास प्रोडक्शन कर पाएंगे ईजिली. Promotes exports, supports the growth of large industries, and the last is better industrial relations. Whatever industries are working in the economy, these small scale industries, they are either providing raw materials to them or they are providing some finished products to the customers. So whatever way they are contributing to the economy, it is somewhere boosting up the industrial relations between the different sectors of the economy. Next we'll have the advantages of small scale industries. First is SSIs don't require a high level of technology. आप अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना प्रोडक्शन कैरी फॉरवर्ड करें. आप मैन पावर ज़्यादा लगा सकते हैं उसकी जगह, और प्रोडक्शन प्रोसेस को आप यूनिक वे में, एक ईजी वे में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड उतना नहीं हो पा रहे तो, ड्यू टू शॉर्ट ऑफ कैपिटल और फंड्स. Next is they do not require large capital. Again, obviously if you are not employing a large amount of capital, if you are not using the updated technology or not using too advanced techniques and all, तो आप capital बहुत ज़्यादा लगाओ ये ज़रूरी नहीं है. So this is must for the small scale industries. The projects related to SSIs can be completed in short period and hence can become productive in a short period. तो जो SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं, प्लाईबोर्ड फैक्ट्रीज हैं, या फिर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, बेकरीज हैं, स्टेशनरी का जो भी सामान होता है उसको मैन्युफैक्चर करने की जो इंडस्ट्रीज हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में भी प्रोड्यूस हो सकती है. और ये जो नीड होती है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये बल्क नीड्स हैं. बेकरी का भी नीड आपको ऑल ओवर द कंट्री मिलेगा. स्टेशनरी सबको चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पेन पेंसिल रबर स्केल चाहिए ही चाहिए. ठीक है, प्लास्टिक का यूज़ हर जगह ही होता है, चाहे वो बकेट्स हों, टब्स हों, और यू हैव द बास्केट्स एंड ऑल फॉर ऑल दैट. प्लाईबोर्ड का यूज़ हर जगह होता है फॉर सम ऑफ द डोर्स, टेबल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ये बल्क में हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है, लेकिन ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही प्रोड्यूस हो पा रही है. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल पीपल आइदर फुल टाइम और पार्ट टाइम. एक जो मेजर प्रॉब्लम होती है कंट्री में लेबर माइग्रेशन की, ये कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से, क्योंकि जो लोकल लेबर होता है उस पर्टिकुलर रीजन का या एरिया का, उसको उसी लेवल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो जाता है. एंड द नेक्स्ट इज SSI एक्ट्स लाइक ट्रेनिंग एरिया फॉर लोकल एंटरप्रेन्योर. तो जो भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर आप उसको पहले लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे सेट कर रहे हो, तो आपके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड क्रिएट करता है वो. उसके बाद आप एनालाइज करो सिचुएशन को और कि आपका बिजनेस कितना ग्रो कर पा रहा है, उसके बाद आप उसको आगे एक्सपैंड कर सकते हो. यू कैन मेक इट टू अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. Now talking about the disadvantages, let's discuss that as well. High cost of production. क्योंकि आप टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं आपके पास है, आप कैपिटल नहीं बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें आपको बल्क में प्रोड्यूस नहीं करनी होती, क्योंकि आपकी डीलिंग तो स्मॉल लेवल पे ही है ना. तो जब आप बल्क पे प्रोड्यूस करते हो तब आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, लेकिन आपको जब थोड़े अमाउंट में
प्रोडक्शन करना होता है तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन फैक्टर्स. नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ बाय प्रोडक्ट्स. वट एवर बाय प्रोडक्ट्स और द रेसिडुअल प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट आउट, उनका वेस्टेज होता है इन दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. दे आर नॉट केपेबल एनफ ऑफ यूटिलाइजिंग दोज बाय प्रोडक्ट्स. लेस यूज ऑफ मशीन्स. राइट नाउ आई टोल्ड यू, क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा आप लगा नहीं रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मशीन्स और इक्विपमेंट्स यूज़ करो या बहुत ज़्यादा आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो कंसर्निंग द एक्सरसाइज. लैक ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. जो भी लेबर फोर्स यूज हो रहा है एक तरह से कह सकते हैं कि दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद प्रॉपर डायरेक्शन कि उन्हें क्या करना है. जस्ट बिकॉज आ नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन अ सर्टेन सेगमेंट और सेक्टर, तो बाकी सब भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं. एंड द नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन गेटिंग लोन्स. क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे बिजनेस सेटअप करने में कई सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, तो इसलिए बैंक से लोन अवेल करना ये भी एक टास्क हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए. Now let's understand the definitions as per which we understand that what is the basic difference between the micro, small and medium enterprises. अगर हम पुराने definition की बात करें तो पुराने definition के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग क्राइटेरिया होता था और सर्विसेज सेक्टर के लिए अलग होता था. मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन एंड ऑल के काम हो गए और सर्विसेज में जो भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करो, जैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करो, बैंकिंग प्रोवाइड करो, ये सारी चीज़ें होती है. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो माइक्रो एंटरप्राइजेस थी, एक जो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि पुराने डेफिनेशन के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट लगाती थी कंपनीज, जो भी एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट लगाते थे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, वो डिफाइन करता था कि किस कैटेगरी में आपकी इंडस्ट्री आएगी. आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफाइन कर रहा है कि आपकी इंडस्ट्री किस सेगमेंट में आ रही है, माइक्रो में, स्मॉल या मीडियम में. लेकिन नया डेफिनेशन जो आया है 1 जून 2020 को, विच वॉज अनाउंस्ड बाय अंडर दी आत्मनिर्भर भारत पैकेज इट सेल्फ, जिसके अंदर एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज की गई थी एंड इट वॉज चेंज्ड बाय the cabinet, by the union cabinet, and this was a statement by the MSME minister Mr. Nitin Gadkari that investments will no longer characterize the MSMEs. जिसका सिंपल सा मतलब ये था कि आपने कितना पैसा लगाया है इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, अब सिर्फ इससे मतलब नहीं है, बल्कि हम आपके टर्नओवर को भी एनालाइज करेंगे कि आपका टर्नओवर कितना हो रहा है इन अ पर्टिकुलर ईयर. नाउ टॉकिंग अबाउट द माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो पहले के डेफिनेशन के हिसाब से 25 लाख, पहले के डेफिनेशन के हिसाब से वी वर हैविंग इट एज लेस देन 25, लेस देन और इक्वल टू 25 लाख. ठीक, ये था माइक्रो के लिए. स्मॉल के लिए जो हमारा सेगमेंट था वो था 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में. तो पहले के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में जो इन्वेस्टमेंट लग रहा था वो बनाता था आपका स्मॉल स्केल इंटरप्राइज. ये आप देख सकते हो कितना कम ही अमाउंट है कि एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आप सिर्फ 25 लाख से स्टार्ट कर सकते हो अपना काम. और मीडियम के लिए ये था 5 करोड़ से 10 करोड़ तक. ठीक, सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो माइक्रो के लिए था 10 लाख या उससे कम, और स्मॉल के लिए था 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में, और मीडियम के लिए था 2 करोड़ से 5 करोड़. तो ये थी हमारी पुरानी डेफिनेशन जो कि इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे थी, और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर दोनों का अलग अलग डेफिनेशन था. लेकिन नई डेफिनेशन के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों कैलकुलेट करोगे, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए सेम है. तो माइक्रो के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ या उससे कम, और टर्नओवर होना चाहिए आपका 5 करोड़ या उससे कम. स्मॉल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होगा 10 करोड़ या उससे कम, और आपका टर्नओवर होगा 50 करोड़ या उससे कम. मीडियम के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होगा 50 करोड़ या उससे कम, और उसका इन्वेस्टमेंट टर्नओवर होगा 250 करोड़ या उससे कम. ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है. आई होप आई हैव गिवन यू इन द पॉइंट्स. आप इसको एलैबोरेट करके अपने वर्ड्स में बहुत ईजिली लिख लोगे. So that's all for today's video concerning the small scale industries. I hope it was clear. Any doubts you can mention down in the comment section below. That's all for today. Thank you and have a nice day. Again a reminder, don't forget to subscribe the channel if you haven't subscribed yet.